उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय का समाज के सभी क्षेत्रों में शानदार योगदान रहा है। उपराष्ट्रपति ने कॉरपोरेट जगत से शिक्षा के क्षेत्र में आगे आकर इनोवेशन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्र का युवा संरक्षण, पक्षपात और भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर सोचता है। Almost over, and this will lead to upsurge in very significant areas, upsurge in innovation, research and development. The world over it is being done by corporates. Our corporates are no less. They need to come forward now. Friends, you are lucky to be living in an enabling ecosystem where you may unleash and expand your talent and realize your aspirations. An ecosystem that was not available when we were students. The present student category has very wholesome ecosystem available to them. As a consequence of series of affirmative governance and policy initiatives, my young friends, you will be taking leap in the larger domain that offers new vistas of opportunities. Today, youth of the nation are enabled as never before to a level playing field divorced of nightmare of patronage, favoritism, and nepotism. You realize the importance of level playing field only when you are denied. Me and my generation have seen it. We have seen what patronage means, what favoritism means, what nepotism means. You are lucky to be living in times where you have a level playing field available to you. Friends, privileged pedigree has ended with fair, equitable enforceability of equality before law. Equality before law is inalienable democratic facet and a new norm now. Just imagine denial of it, how humiliating it could be that there are people more privileged than you are. Now that privileged pedigree has come to an end. It is baffling and worrisome that enforcement of law and legal process is sought to be ridiculed by some by taking to streets. It is baffling and worrisome that enforcement of law and legal process is sought to be ridiculed by some by taking to streets. As most vital stakeholders in democracy and governance, my young friends, you need to neutralize such sinister trends. Adherence to law is fundamental to democracy, and that gives us the most vital constitutional right of equality. Friends, for too long, the system and governance remained in our country plagued by corruption, nepotism, favoritism, and patronage. My young friends, soothingly, corruption once bane in society is now no longer rewarding. Patronage and corruption, once password to a job or opportunity, has ended. Its practitioners are now facing heat of law. Even high and mighty are being held accountable to law and are in its tight grip. Power corridors, once infested with corrupt elements, have now been sanitized. Just imagine when you take a leap in the larger domain, what an ecosystem you'll have. This, what could be better opportunity for you to unleash your talent, realize your aspirations. Friends, stepping out, you'll find environment of hope and possibility on account of exponential economic rise and phenomenal growth of physical and digital infrastructure.
Bharat, our motherland, home to 1/6 of humanity, is already, friends, the 5th largest global economy, ahead of Canada, UK and France. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में 6,400 करोड़ रुपए की लागत से 53 परियोजनाओं की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे वे कश्मीर में लागू नहीं हो पाते थे। एक जमाना था जब गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहनों को उनका लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब देखिए कैसे वक्त बदल चुका है। आज श्रीनगर से आपके साथ ही भारत के लिए योजनाओं की शुरुआत हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को था। इस नए जम्मू कश्मीर की आंखों में भविष्य की नई चमक है। इस नए जम्मू कश्मीर के इरादों में चुनौतियों को पार करने का हौसला है। जब इरादे नेक हो, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा हो, तो फिर नतीजे भी मिलते हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे यहां जम्मू कश्मीर में G20 का शानदार आयोजन हुआ। कभी लोग कहते थे जम्मू कश्मीर में कौन पर्यटन के लिए जाएगा। आज यहां जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। अब कृषि विकास कार्यक्रम से ये क्षेत्र और मजबूत होगा। 5,000 करोड़ रुपए के इस कार्यक्रम से अगले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर के कृषि सेक्टर में अभूतपूर्व विकास होगा। विशेष तौर पर बागवानी और पशुधन के विकास में बहुत मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर आज तेज रफ्तार से विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, जम्मू कश्मीर भारत का मस्तक है और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। विकसित जम्मू कश्मीर विकसित भारत की प्राथमिकता है। साथियों, एक जमाना था जब देश में जो कानून लागू होते थे वो जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हो पाते थे। एक जमाना था जब गरीब कल्याण की योजनाएं पूरे देश में लागू होती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के मेरे भाई बहन उनका लाभ उनको नहीं मिलता था। और अब देखिए वक्त ने कैसे करवट बदली है। आज यहां श्रीनगर से आपके साथ ही पूरे भारत के लिए भी योजनाओं का आरंभ हुआ है। आज श्रीनगर जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश के लिए पर्यटन की नई पहल कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब इरादे नेक हो, संकल्प को सिद्ध करने का जज्बा, तो फिर नतीजे भी मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में पर्यटन के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर के लाभार्थियों से भी उन्होंने बातचीत की। उन्होंने विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद जवानों के परिवारों को नियुक्ति पत्र भी बांटा। स्वदेश दर्शन इस स्कीम के अगले चरण का भी शुभारंभ हुआ है। इसके तहत भी जम्मू कश्मीर समेत देश के अन्य स्थानों के लिए करीब 30 परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। आज प्रसाद योजना के तहत 3 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। 14 और परियोजनाओं को भी लॉन्च किया गया है। पवित्र हजरत बल दरगाह में लोगों की सहूलियत के लिए जो विकास कार्य हो रहे थे वो भी पूरे हो चुके हैं। सरकार ने 40 से ज्यादा ऐसी जगहों की पहचान भी की है जिन्हें अगले 2 वर्ष में
टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित किया जाएगा। आज देखो अपना देश पीपल्स चॉइस अभियान भी लॉन्च किया गया है। इससे एक बहुत बड़ा अनूठा अभियान है। देश के लोग ऑनलाइन जाकर के बताएंगे कि ये देखने जैसी जगह है, और उसमें जो टॉप पर आएंगे उनके लिए सरकार पसंदीदा लोगों की चॉइस वाला स्थान के रूप में उसका पर्यटन स्थल के रूप में विकास करेगी। ये जन भागीदारी से निर्णय होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज अपने संसदीय क्षेत्र बूंदी में आध्यात्मिकता के प्रमुख केंद्र भगवान केशव राय जी मंदिर परिक्षेत्र के पुनर्विकास कार्य की लॉन्चिंग के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। इस काम के पूरा होने के बाद भगवान केशव राय जी मंदिर धार्मिक पर्यटन के नक्शे पर अपनी एक खास पहचान स्थापित करेगा, ऐसा लोकसभा अध्यक्ष का कहना है। इस मौके पर उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत भगवान केशव राय जी मंदिर क्षेत्र का पुनर्विकास होने के बाद संपूर्ण मंदिर क्षेत्र नए स्वरूप में नजर आएगा। इससे कोटा बूंदी के लोगों को भी काफी फायदा पहुंचेगा। जब नीचे से ऊपर तक पूरे, मुझे याद है, मुझे छोटी छोटी, मैं इस डीपीआर बनाने के लिए पिछले 2 साल से राज्य सरकार के पीछे पड़ा। 2 साल से मैंने कहा आप डीपीआर बना दो, सारा पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, स्वदेश दर्शन में देगी। पर डीपीआर बनाने में जो 2 साल हो गए, एक बार डीपीआर बनाओ 6 महीने अटक जाए, फिर 3 महीने अटक जाए, डीपीआर के टेंडर फाइनल नहीं किए। अल्टीमेटली मुझे डीपीआर के टेंडर दिल्ली से फाइनल करने पड़े, क्योंकि प्रारंभिक प्रोजेक्ट बनाने की जिम्मेदारी राज्यों की होती है। कई लोग मुझे कहते हैं भाई साहब दिल्ली तो आप नहीं चुना है, लेकिन राज्य से प्रस्ताव जाते हैं। हर घर नल योजना किसकी थी? केंद्र की। लेकिन एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन थी? राज्य। टेंडरों में घपले हो जाए, चोरी चपाटी हो जाए। 1 साल से नोनेरा बांध का टेंडर ही नहीं हो पाया पेयजल का। 1 बार हो फिर कैंसिल, 2 बार हो फिर कैंसिल। एक योजनाओं को डिले करने से बहुत बड़ा नुकसान राज्य का हुआ है। नहीं तो अगर राज्य सरकार हमारी होती पिछली बार, तो इस 5 साल के अंदर, मैं ये तो नहीं कहता, लेकिन तस्वीर और तकदीर को बदल देते यहां के। जब धार्मिक पर्यटन आता है तो रोजगार के नए अवसर खुलते हैं, नौजवानों को रोजगार मिलता है, महिलाओं को रोजगार मिलता है। इसलिए आप निश्चित मानिए ये पूरा का पूरा घाट का पुनर्विकास होगा। पसाड लाइट लगेगी, पार्किंग होगी, भोजनशाला होगी, और सुंदरता की दृष्टि से नगर विकास न्यास रंगपुर के उस रोड का कार्यक्रम कराएगा, और यहां से वहां तक नावें और बोटिंग का काम भी शुरू होगा, ताकि बहुत भव्य पर्यटक स्थल ये डेवलप हो सके।